एवरीवन, वेलकम टू अवर अनदर पॉडकास्ट। तो आज हम मिलने वाले हैं एक नए राइटर के साथ। जी, अभी कई पुस्तकों पे काम कर रहे हैं जिनकी कई पुस्तकें हमारे साथ मार्केट में आ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं महिमा नयाल, जो कि ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बीकॉम किया हुआ है। उसके बाद लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रेंच में कई डिग्रियां दिल्ली यूनिवर्सिटी से हासिल की हुई हैं। वो बीएड भी कर चुकी हैं। साथ ही साथ लिटरेचर की फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। उनका उद्देश्य राइटिंग को घरों तक पहुंचाना है, जो कि अपने थॉट्स को अपनी पुस्तकों के माध्यम से, एकेडमिक बुक्स के माध्यम से, अलग अलग सेक्टर्स की बुक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो वेलकम करते हैं महिमा नयाल जी का। हेलो मैम, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। तो अभी आप लोगों को बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कैसे अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया। तो Thank you so much, sir. Thank you so much for having me on your show. First, I would like to introduce myself. My name is Mahima Nayal. I'm 26 years old. I live in Delhi, and I have introduced myself as a writer in the writing field. So, I will be talking about my background, what I have done in my past, and what I'm doing right now, currently, also. So, first of the thing, I am a postgraduate in English literature and French literature from the GRS department, Arts Faculty, Delhi University. And then I have qualified my B.Ed from the NDU, Maharishi Dayanand University, Haryana, Rohtak, as you are aware of. And now I am currently I'm doing for my PhD admission. I've already qualified my UGC NET examination this year in a very successful way. And then I have been working as a writer from the year when I entered the post graduation. From there, I started learning the basics of writing. From there, I thought of becoming a writer. Okay. And then I have introduced my book also. We'll be talking about a lot of books I have been in the line. Okay. So that's all about me. And So, that's all. how you had started your journey as a writer? Because you were earlier as a person who were more interested on a French, then coming back to the literature world and literature. Now you are talking. You had written a book which are containing lots of the stories. So from that French language and then B.Ed, I can see there is a fluctuations in your life or Yeah. a lot of things which are diversifying your culture, or you are having something which are having lot of the degrees. Okay, so then coming to the writing, how this journey changed. See, I have done a lot of things in my life when it comes to the academic area. I have done the post graduation diploma in international business relations as well. So I was not very, you cannot say, because belonging to a very, coming from a very ordinary background, I mean, with a very lower middle class mentality, I can't think of becoming a writer. As I already told you that when I entered my master's level, so there were quite few nice professors Okay. who were there to help us with our writing. From there, I actually learned the basics of writing, that how the literature work has to be done. And then coming with the years, of course, I'm a confident girl, I'm a passionate girl. I know I'm 26 years old. I have a long way to go. So, like, literature is something I haven't thought for myself because of my family background, but yes, it was my destiny also. But yeah, it was my hard work also. Okay. So, I have a long way to go and I have a long, beautiful career I can imagine in my head. Definitely, ma'am. Along with like a book writing, you work on a Uttarakhand cinema as well. Recently, we have seen. Already. So, what is all about? Yeah, Uttarakhand cinema is a very special cinema. First of all, I would like to tell to my audience that I am from Uttarakhand, Almora district, Kotli village. मैं पूरा मेरा जो परिवार है वो मैं उत्तराखंड की हूँ. मेरा जो रिलेटिव्स हैं वो सारे उत्तराखंड से ही हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ. And I'm a native of Uttarakhand because such a beautiful place, and
Something like I wanted to do for Uttarakhand from a very long time, but I wasn't getting that kind of a support. Opportunity, yeah. But one day I got a call from one of director. He was a very big director of Uttarakhand, Aman Bharti. मैं जिनका नाम लेना चाहूंगी, अमन भारती जी का. उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी, मेरे पे विश्वास किया. मैंने उसमें अपना स्क्रिप्ट राइटिंग करी है, आप वो यूट्यूब में जाके देख भी सकते हैं. ठीक है. आजकल एक ग्वार करके एक कुमाऊनी उत्तराखंड शॉर्ट फिल्म है, वो उसमें जाके आप देख सकते हैं. तो उसमें मेरा नाम है. बहुत ही अच्छी, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ उत्तराखंड, हाउ द पीपल लिव्स. तो उस पे मैंने अपना उसमें करा है काम. आप देखिए जाके, आपको पता चलेगा मेरा काम उसमें एज अ स्क्रिप्ट राइटर क्या है. आपने एक पुस्तक की जो लिखी हुई है द हाँ जी. डेली लाइफ, तो इसके बारे में जब आप ये लिख रही थी तो क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि ये फर्स्ट बुक थी. फर्स्ट बुक लिखते हुए क्या आपको चैलेंजेस नजर आए? See, it wasn't my first book, if you say that. ओके. It actually got introduced at the first stage. That's why it got the first name ओके. also. ओके. It wasn't because from my master's only I was writing a lot of things. Because now also whatever the writing work I have done with the collaboration, with the help of the other people also, I have done many of the collaborations with other Okay. people also. So I have published one of my journal in the international area. You can check also. So it's like not the first book actually. But yeah, if you say me that the thought process which actually encouraged me to write this book, it was very spontaneous. I mean, it was not, I have to write the book. I mean, I have to write the book. I mean, I was writing the book till I finished it. I mean, like, it wasn't like something. I was creatively exhausted. I was not like squirreled away something from, because I'm trying to save the things for other book. It wasn't like something like that. It was the kind of, exposures and the past experiences that from my childhood to now, till my 26 years of age, I wrote that. So that was my thought process. And I wanted people to actually experience the range of emotions through this book. That's why I want people to read the book. That's it. तो मैम, जब आपने लिखना स्टार्ट किया था तो आपको लगा था कि आपकी राइटिंग जर्नी है कभी एक स्टोरी लिखने से एक बुक के फॉर्म में चेंज हो पाएगी, कभी आपकी एक कोई बुक खुद की होगी जिसके आप ऑथर होगे? Really not. सबसे पहले तो मैं to be very honest सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा था. बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं. इसका बेसिक रीजन ये है कि मैं एक तो फैमिली वाइज मेरा है नहीं लिटरेचर ज्यादा फाउंडेशन. ठीक है. और कुछ ज्यादा इनकरेजमेंट और मोटिवेशन था नहीं इस डायरेक्शन में. ठीक है. कि मैं कुछ ऐसा करूं. लेकिन क्योंकि जब मेरे मास्टर्स का एग्जाम खत्म हुआ था तो उसके कुछ आई थिंक आफ्टर 15 या 20 दिन बाद मैं बस बोर हो रही थी. मैं बस वही है, बोर होता है आदमी तो कैसा फिर होता है, कुछ ना कुछ कर लो, कुछ ना कुछ लिख लो अपने आप को रिलैक्स थोड़ा सा फील कराने. तो बस लिखने लगे. एक लिखी स्टोरी, ऐसे करते करते 8 to 10 स्टोरीज, 8 से लेकर 10 स्टोरीज मैंने कम से कम लिखी. तो मैंने अब उनको पढ़ना चालू करा तो वो बिल्कुल ही ऐसे लग रही थी जैसे किसी राइटर ने लिखी हुई है. तो मैं अपने आप को थोड़ा रिकॉग्नाइज उस टाइम पे करने लगी, कि पहचानने लगी कि मेरा है कुछ ऐसा मेरे अंदर एक राइटर. ठीक है. तो वहां से फिर कुछ 10-12 और लिखी मैंने. फिर वो क्या हुआ कि मैंने वहां पे थोड़ा मैं रुक गई और कुछ 2-3 पब्लिशर्स को, कुछ नामी ग्रामी पब्लिशर थे, उनको कांटेक्ट किया. मैंने उनको कांटेक्ट किया तो आगे रिव्यू मुझे बहुत अच्छा मिला, काफी बढ़िया रिव्यू मिला. तो अब वही ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कोई चीज का आपको अच्छा रिव्यू मिल जाता है और आपको लगता है कि आप उसको और अच्छा कर सकते हो, तो बस फिर हम और लिखने चले. कलेक्शन उसको बना दी. तो करते करते मैंने कम से कम 48 से लेके 50 स्टोरीज उसमें लिख दी ऐसे करते करते. फिर मैंने फाइनली कई सारे जो है पब्लिशर्स को मैंने किया कांटेक्ट. ठीक है. उसके बाद हर किसी से अपना अपना एक डिस्कशन चला मेरा, सबके साथ मीटिंग हुई. तो फाइनली फिर नटल्स पब्लिकेशन के साथ मैं जुड़ी. आई एम वेरी फॉर्चुनेट.
बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि मैं इनके साथ जुड़ी। पूरी बुक को इन्होंने पब्लिश में भी करवाया, तो उससे बेहतर जर्नी मेरी हो नहीं सकती। I'm really feeling very confident and it makes me feel very nice. Definitely. When the book gets published and you are having your own book in your hand, Yeah. that always gives the refreshing vibes. Okay. Of And course. even for your parents, it is like they were feeling proud when you had like a provided them as a gift, like this, like your journey and in the form of a writer. Now they are reading your book. So that's always Of course, fortunate of for you. course. उससे बेहतर प्राउड मोमेंट देखो नहीं हो सकता है। जिन माँ बाप ने इतना पढ़ा लिखा रखा है वो आपको, और फिर फाइनली जब उनके आगे रिजल्ट आता है वो, तो उससे बड़ा कोई प्राउड मोमेंट नहीं होता। आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए, आपके प्रोफेसर्स के लिए, जो सबसे बड़े जिनका रहा है पार्ट उस जर्नी में, आपको आप उस लेवल तक गए हो, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले जिस दिन मेरे को ये बुक आई थी मेरे हाथों में पब्लिश होने के 2 दिन बाद, तो सबसे पहले मैंने अपने फादर को ही दी थी। Okay. सबसे पहले वो अभी भी वो मोमेंट याद है मेरे को, जब रैपर में आया था, सर्टिफिकेट भी आया था, तो बहुत खुशी हुई ऑफ कोर्स। तो उसके बाद तो बस सभी खुश हुए। बिल्कुल। और आपने डेडिकेट भी किया हुआ है। हाँ, जैसे कि हम dedicate। बुक ओपन करते हैं ना, तो जो सबसे पहला पेज आता है बुक डिटेल्स के बाद में डेडिकेशन का, वहां पे आपने अपने मदर और फादर को ये बुक डेडिकेट की है। साथ ही साथ आपने एक स्पेशल मेंशन भी किया मधुबाला मधुबाला जी जी के को, बारे में। मधुबाला जी को। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसा योगदान रहा है मधु पेरेंट्स हाँ, का, और फिर मधुबाला जी से कैसे आप इंस्पायर? देखो माँ बाप से तो इंस्पिरेशन तो बस बचपन से लेके आज तक ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए, आप फिर मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी, ठीक है, माँ बाप से तो हमेशा हर घंटे हर सेकंड आप इंस्पायर होते रहते हो। बिल्कुल, कुछ ना कुछ आप नई चीजें, नई आदतों को, कुछ अपने माँ से सीखते हो, कुछ अपने पिताजी से सीखते हो, ठीक है। आपके सामने उनको आप देखते हो हमेशा, ठीक है, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखो पढ़ाई भी तो मैं नहीं कहूंगी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इतना कोई फैमिली बैकग्राउंड मेरा पढ़ा लिखा है, इतना ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन जिंदगी जीने का एक तरीका तो आप माता पिता से सीखते हो, है ना। पढ़ाई माता पिता, हर माँ बाप आज के टाइम पे ठीक है नहीं हो सकते हैं, वो कई बार नहीं हो पाता, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका माँ बाप से ही सीखते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, मधुबाला जी के बारे में जैसे आपने स्पेशल मेंशन दिया, तो मैंने पूछा वो भी था जब हम काम कर रहे थे कि स्पेशल मेंशन क्यों, तो आपने बोला ये चीज मैं अपने पॉडकास्ट में रिवील करूंगी कि मधुबाला जी को मैंने एक स्पेशल मेंशन किया है, तो मैं तो थोड़ा बताएं वेल इट्स अ सरप्राइज आप ऑडियंस के लिए। अब मैं आपको सिर्फ आपको बताती तो आपको पता चलता। बिल्कुल तो मैं चाहती थी कि मैं आपके चैनल के थ्रू मैं ये चीज रिवील करूं। और सबसे पहले तो मधुबाला जी, जो बहुत ही फेमस एंड लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं पूरे इंडियन सिनेमा की, एज यू अवेयर हो, उनको मेंशन करना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि शी इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट एक्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू द एक्टिंग एंड ब्यूटी ऑल्सो। आई थिंक ग्रेस, ऑफ कोर्स उनकी स्टाइलिंग, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी यूनिक। लिटरेचर फील्ड में उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, तो बहुत आर्ट को उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत जरूरी था ये। मैं अपने स्कूल के दिनों में हम लोग क्या करते थे कि प्लेग्राउंड में हम लोग घास बहुत खींचते थे उस टाइम। तो एक्चुअली हमारी टीचर्स ऑब्वियसली हमें बहुत डांटती थी, हमारे प्रिंसिपल लोग बहुत ज्यादा डांटते थे, तुम लोग घास क्यों खींचते। तो अब किसी ने बोला होगा कि घास को क्या हो गया, हम अगर खींच रहे हैं तो उसमें क्या कर, किसी बच्चे ने, अब टीचर ने यही बोला बेटा घास को भी दर्द होता है, अगर तुम उसको इतने गंदे तरीके से और इतना दर्द देके उसको खींचोगे। तब हमें रियलाइज आया यार, एक कंपैशन की जो कहते हैं ना कि किसी के बारे में सोचना, कि किसी को तकलीफ होती है। तो इस ये बुक के थ्रू मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि किसी की तकलीफ को भी समझना एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी की तकलीफ को नहीं समझोगे फिर आपकी भी कोई नहीं समझेगा। ये एक सीख है लोगों के लिए। जी हाँ। तो मतलब इस Life स्टोरी के lesson, लोगों के लिए, आपके लिए मस्ट रीड स्टोरीज में से ये एक है जो एक फॉर्मर के द्वारा बताई। हाँ। मैम जो आपकी बुक आ गई बेसिकली अमेजन पे रिलीज हो गई, फ्लिपकार्ट पे आ गई, किंडल और वेबसाइट पे भी,
उसके बाद आपने डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, रिलेटिव्स को बताया होगा, उनके क्या रिएक्शन थे? क्योंकि उससे पहले की जर्नी तो कोई नहीं जानता, हाँ हाँ। उसके बाद वाली जर्नी वो जानते थे, जब जाने तो उनका क्या रिएक्शन? ऑब्वियसली उनका तो रिएक्शन बहुत ही एक्साइटेड था, दे वर सुपर वेरी 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 एक्साइटेड। उससे पहले की जर्नी तो मेरे हिसाब से मेरी मदर को पता था, हाँ, और कि मैं बुक लिख रही हूँ, लेकिन अब एक होता है ना कि बुक जब पब्लिश हो जाती है तो उसके बाद की एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा वाली होती है। बिल्कुल। ऑब्वियसली मेरे कुछ दो तीन फ्रेंड्स ने बुक परचेज भी करी है, तो बहुत एक्साइटेड थे वो सब, बिल्कुल। बहुत सारे, मुझे बहुत सारी बधाइयाँ आई उस चीज की। So you have a co-author in this book as Piyush. पीयूष तो कुमार तो पास। सर के साथ में कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? क्योंकि एक जब बुक राइट करते हैं, सेम थॉट्स को मैच करना, उन चीजों को कैसे अलाइन किया आप दोनों लोगों ने कि एक राइटिंग अ बुक अलोन, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें आपकी मोनोपोली चलती है। जब आप किसी दूसरे को ऑथर के साथ मिलके एक बुक को लिखते हैं तो आपकी जर्नी थोड़ी अप एंड डाउन के साथ में होती है। उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? आई थिंक बहुत मेरे लिए इजी रहा व्हेन आई वाज एक्चुअली वर्किंग विद रिस्पेक्टेड मिस्टर पीयूष कुमार पराशरी। बहुत कमाल के ऑथर हैं वो, उन्होंने भी मेरे साथ ही डेब्यू किया है अभी इसी बुक के साथ। ओके ओके। हालांकि वो पहले से राइटिंग वर्क कर रहे थे इनफॉर्मली, इनफॉर्मली मैं भी राइटिंग वर्क कर रही थी, बट फॉर्मली पब्लिश उन्होंने भी मेरे साथ ही कराया। अब रही बात, आप कह रहे हो कि एक होता है कि अकेले जब हम राइटिंग द बुक अलोन, यू हैव अ मोनोपोली ओवर दैट बुक, ऑब्वियसली वो तो है ही। वहाँ पे आपका एक थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा अपना ही चलता है, और जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हो देन यू हैव टू ट्राई योर हार्ड टू मैच योर थॉट प्रोसेस विद अनदर पर्सन, राइट? ठीक है। तो वहां पे मुझे ऐसा लगा नहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम अगर वाकई में आई है तो, क्योंकि वो बहुत ही प्रोफेशनल थे, वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड है उनका, नो डाउट। ओके। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नाइस नाइस, मतलब एक ऑथर को इस तरीके के को ऑथर मिलना, दैट इज ऑलवेज अ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, वेरी ओके, फॉर्चुनेट है वहाँ। so how was your journey with an adult publication, and how they help you in publishing the book? सी, मेरी तो जर्नी बहुत ही कमाल की रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम वाकई में नहीं आई है। लोग बोलते होंगे झूठ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। मैं को ऑथर के साथ काम किया, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने नाटल्स पब्लिकेशन के साथ आप लोगों के साथ काम किया, मुझे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और सब स्मूथ चला है, एकदम स्मूथ चला है। कहीं पे मुझे डिले, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, दैट इज ओके, वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाटल्स के साथ बहुत सही रही है मेरी मतलब कोलैबोरेशन, और मैं तो ये चाहती हूँ कि नाटल्स के साथ ही मैं, मेरे जो आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं के साथ मैं करने वाली ओके, तो अभी आपकी और बुक्स भी आने वाली हैं इसके बाद में, जैसे उन बुक के बारे में थोड़ा सा इनलाइट करें। मुझे पता है कि अभी पूरा हूँ। आप डेफिनेटली नहीं रिवील करने वाले, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बताएंगे कि, तो थोड़ा सा इंसाइट दें तो थोड़ा उनको। सा मैं आपको इंसाइट दे देती हूँ अपनी ऑडियंस को, ताकि आपको बिकॉज आई डोंट वांट टू किल दैट एक्साइटमेंट। एक बुक है, अभी तो अभी पहली बुक पब्लिश हुई है, तो उसके पीछे से दो बुक और आने वाली हैं। तो ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगी बुक के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है वो, ठीक है। That's nice. हाँ, So a lot of the thing for the writers, for the readers, is coming in yeah, their yeah, book. yeah. A lot of surprises I have planned for my lovely audience. Okay, okay, nice. So, what are the things that you want to convey to the new writers who are writing? How they can pursue their career as a writer? So, is there any comment that you would like to do right now? सी, नए राइटर्स के लिए द ओनली टिप, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टिप नहीं दूंगी आप लोगों को, बिकॉज द सिंपल टिप है, मैं भी वही फॉलो करती हूँ, तो मैं वही दे रही हूँ। एक्सपोजर, जितना ज्यादा आप एक्सपोजर लोगे अपनी लाइफ में, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आर हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। कोई भी इशू हो, चाहे वो पॉवर्टी का इशू हो, चाहे वो मैरिज इशू हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप जितना अपने आप को डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ, अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, तो उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना। तो उससे क्या है कि आपकी राइटिंग में इम्प्रूव होगा। इतना टिप दे सकती हूँ मैं। अ, अब ठीक है मैम, आपने बता दिया, मतलब लोगों के पास एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आया होगी कि बुक कहाँ से परचेज कर सकते हैं, कहाँ मिलेगी, तो थोड़ा एक गाइड कर दे ऑडियंस को।
गाइड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी बुक जो है 17 मई 2025 सेशन में रिलीज हो चुकी है सक्सेसफुली, जिसकी ऑथर महिमा नयाल हूँ, वो हूँ मैं, और उसके को ऑथर हैं पीयूष कुमार पराशरी सर। आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है गूगल में आप देख सकते हैं हमारे बारे में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा जीमेल है, आईडीज आपको प्रोवाइड कर रखी है, नंबर आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और रही बात उनकी अवेलेबिलिटी की, अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, किंडल एंड नेटल्स पब्लिकेशन की वेबसाइट पर, तो वहां पे आप जा सकते So you belong from Uttarakhand. हैं। यस। Okay. So can you just talk to about it? You belong from Devbhoomi, Uttarakhand. So can you tell me from which location you belong, and you working in any project which belong from the Uttarakhand? Yes. I do belong to Devbhoomi, Uttarakhand state. It's a very beautiful place, and I recommend people. To come to the Uttarakhand, and So you belong from Devbhoomi, Uttarakhand, and you are working on a multiple projects which from Uttarakhand also. So can you talk about yeah, of course. First of all, as I already said, that I belong to Uttarakhand, Devbhoomi. That's a very special and a beautiful place. I recommend people to go over there. You know, and as you are saying about my projects, yes, of course, I have been doing a lot of projects when it comes to the Uttarakhand. I have been working as a script writer for the Kumauni short film, working with the director, respected Aman Bharti sir. Thank you so much for giving me this opportunity to work as a scriptwriter for your film, Ashkal Aguat. You should watch the film. And already said that I have been writing a book on the Uttarakhand daily lives. okay. That will come in the future only, maybe in this session or maybe in the next 2026 January, maybe January to June. I can't promise you when it will come. Okay. But it will come definitely. I have been working together with my partner, co-author. We are working very hard on it. And from that book, you will come to know about the daily culture and the daily life, how the people live. I mean, how people spend their lifestyles while living in Uttarakhand. They are working very hard. Because generally, what I believe, people don't know much about the Uttarakhand state, because what I believe. So that's why I decided to, come ahead and work for my state as a native of that Uttarakhand. And I'm a proud Uttarakhand native. So ma'am, can you talk about your upcoming projects that is you are working or which are in a pipeline? Yeah, of course. I would like to introduce my future projects to the audience. I will not going to talk about my future projects at the length, of course, but I can only tell you the hints that what I'm writing about. Right now, I'm working on a feminist philosophy, and my two books are on the release in the book that maybe of the competitive examinations book. So that you have to go to the Google and search about this. Thanks for watching.